ऑफ एरर्स का उस दिन हम लोग दो पार्ट किए थे, एरर्स ऑफ कमीशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशने अंडर डिफरेंट डिफरेंट করেছিলাম কি কি ধরো এরর্স অফ রেকর্ডিং, এরর্স অফ পোস্টিং, ক্যারি ফরওয়ার্ডিং, ঠিক আছে। তো তাহলে দুটো হয়েছিল। থার্ড নাম্বার হচ্ছে এরর্স অফ প্রিন্সিপাল। क्या होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मींस when a transaction is recorded in contravention of accounting principle। accounting principle का contravention के चलते तुमको नॉलेज नहीं होगा प्रिंसिपल का, तभी ये वाला गलती ज्यादा होता है। जो रिकॉर्डिंग कर रहा बुक कीपर होता है उसको प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं है। जैसे अभी हम प्रूव करेंगे, एक को बुलाएंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे, पता चल जाएगा कि तुम लोग का भी जो लोग मतलब ऐसे तुम लोग 11 में हो, अभी जस्ट स्टार्ट किए, तुम लोग को पता ही नहीं है, लेकिन बहुतों को पता होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जैसे तो when a transaction is recorded in the contravention of accounting principle, it is known as error of principle. Such errors do not affect the trial balance as the amount are placed on the correct side but in a wrong account। माने अकाउंट डिफरेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल का गलती करके नाम चेंज होकर दूसरा अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन अमाउंट सही रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट सही जगह में होगा, डेबिट है तो डेबिट में, लेकिन होना चाहिए किसी और फॉर्म में, है किसी और फॉर्म में, वो हम लोग क्वेश्चन जब एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ आर एक्सपेंडिचर, बोथ आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, बट इफ यू ट्रीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as capital expenditure, it is the mistake of principle, it is the mistake of principle। why? Revenue expenditure, suppose repairing of machinery is not the increase the value of machinery, painting the house not increase the value of the house, because it is a revenue expenditure। revenue expenditure which are in nature of recurring nature, which are recurring in nature, এটা বারবার হবে, যেটা কস্ট কে ইনক্রিজ করে না তাকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বলে। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আর দোজ এক্সপেন্ডিচার which increase the value of the assets or capacity of the assets, যেটা অ্যাসেটস এর ক্যাপাসিটি কে ইনক্রিজ করে দেয় বা ভ্যালু কে ইনক্রিজ করে দেয়, কস্ট কে বাড়িয়ে দেয়, তাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বলে। তুমি যদি এই নিয়মটা না জানো তাহলে তুমি সবসময় ভুল করে ফেলবে। पुट टू यूज करार आगे, पुट टू यूज एसेट्स को यूज करने का पहले जो भी खर्चा होता है माइनर से माइनर तक, वो उसका क्या चीज का खर्चा होता है, वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल साइड एग्जांपल में देखते हैं कि गलती किस तरह का होगा। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल इसका हो रहा है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीन है तो उसको रिपेयर्स करना ही पड़ेगा। একটা মেশিনকে তুমি রানিং রাখার জন্য তোমাকে ওকে রিপেয়ার, ও খারাপ হবে রিপেয়ার করে, কি রিপেয়ার করলে ওর কস্ট কি ইনক্রিজ হয়ে যায়? ইনক্রিজ তো হবে না। রিপেয়ার্স তো স্মুথ ফাংশনিং অফ মেশিন, মেশিনকে স্মুথ ফাংশনিং করার জন্য রিপেয়ার করছো, তাহলে এটার ক্যাপাসিটি কি মেশিন ইনক্রিজ করে দেয়? করে না। তাহলে রিপেয়ার্স অফ মেশিনারি হলে জেনারেটিভ হওয়ার কথা ছিল কি রিপেয়ার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট বা রিপেয়ার্স অফ মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, এটা হওয়ার কথা ছিল, ঠিক আছে। তো রিপেয়ার্স ডেবিট হওয়ার কথা ছিল। তুমি ভুল কি করবে, প্রিন্সিপালে ভুল, ওইটাকে কি করে দিয়েছো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। তুমি ভেবেছো না মেশিন আছে তো তাহলে মেশিনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, মাইন্ডে কারোর এই প্রিন্সিপাল না জানলে মেশিনারি টু ক্যাশ করে দিল, তাহলে এটা হচ্ছে ভুল আর এটা হচ্ছে রাইট। কিন্তু দুটো তো ডেবিটেই আছে, তুমি তো ডেবিটে জিনিসটাকে ভুল করে কেইটা তো লেখো, তাই জন্য ट्रायल बैलेंस से इफेक्ट होচ্ছে না। ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या सही अकाउंट है ये क्या बोल के जगह ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए था, क्या बोल के जाना चाहिए था डेबिट में रिपेयर्स बोल के, लेकिन तुम रिकॉर्ड कर दियो मशीनरी बोल के। मशीन भी एसेट्स होता है, एसेट्स भी डेबिट होता है और नॉर्मल एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है। तो मशीनरी भी डेबिट में गया तो अमाउंट तो डेबिट का सेम ही रहा, खाली नाम रिपेयर्स की जगह मशीन हो गया। तो नाम से तो कोई लेना नहीं, ट्रायल बैलेंस गलती पकड़ता है अमाउंट से, उसमें सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी समझ में आता है। इसलिए ये वर्ड लाइन लिखा है सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? रिपेयर्स किस तरह खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि मशीन है तो उसको अपने लाइफ में बार-बार रिपेयर होगा ही, खराब होगा जब भी रिपेयर करना पड़ेगा, इससे मशीन का वैल्यू इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ये उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बाइक है मेरा, तो हमको तो बीच में उसका मोबिल चेंज करना पड़ता है, खराब होता है, कुछ चीज गियर खराब हुआ, कुछ गिरा तो रिपेयर करना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं है, उल्टा रिपेयर होगा तो खराब ज्यादा है तो उसका वैल्यू कम ही जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर्स होने से क्या हो रहा है, अब होता है कि रिपेयर्स दो तरह का होता है, एक तो जनरल रिपेयर्स जो करना पड़ता है, एक होता है मेजर रिपेयर्स। तो मेजर रिपेयर्स होता है तो कैपेसिटी इंक्रीज, हम इंजन गाड़ी का इंजन कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं, जब मेजर रिपेयर्स होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मल जो रिपेयर्स होता है, जनरल रिपेयर्स जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब बताए, रिपेयर्स भी दो तरह का होता है, नॉर्मल रिपेयर्स और एक होता है मेजर रिपेयर्स। मेजर रिपेयर्स में कैपेसिटी इंक्रीज करने वाला, कैपेसिटी इंक्रीज माने उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ने में मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल का लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, दीस एरर्स हैपन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके। नेक्स्ट अगेन सेकंड एग्जांपल of error of principle is treating capital expenditure as revenue expenditure. For example, commission paid to agent on purchasing assets. ব্রোকার ব্রোকারকে আমি কমিশন যেটা দিই না, তো একটা অ্যাসেটস অ্যাকোয়ার করার জন্য আমি অন্যকে ব্রোকারকে আমি টাকা দিই, তাহলে সেই কমিশনটা কি হয়, কমিশন, तो कमीशन पेमेंट के जनरली क्या होगा, अनामिका कमीशन पेड टू एजेंट फॉर परचेजिंग एसेट्स, सॉरी एक ही बार कमीशन टू, ठीक है। कमीशन में गलती ऐसे ही होगा कि कमीशन को सोचा कमीशन अकाउंट, यानी वो ये नहीं देखी कि कमीशन कब पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया। परचेस एसेट्स को एक्वायर करते समय अगर तुम कमीशन दे रही हो तो ये पुट टू यूज के पहले का कमीशन है, पुट टू यूज का एसेट्स पे पुट टू यूज करने का पहले जो भी खर्चा होगा वो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, खर्चा का एक्सपेंस का नाम नहीं आता है, बैठ जाएंगे। तो इस तरह का पाप भोजन करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब ये वीडियो में आप कर देंगे, ठीक है। तो देखो उम्मीद नहीं था की है, ठीक है। तो जीवन में याद रखना कि तुम तो परचेस करते समय एसेट्स एक्वायर करने का पहले जो भी खर्चा होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स पे किया गया जो भी खर्चा होगा, खर्चा का नाम नहीं आता है, एसेट्स पर पड़ता है, ठीक है। तो हम इसमें नॉर्मली गलती क्या करता है, राइट एंट्री होना चाहिए था एसेट्स टू कैश या बैंक जो भी हो, उन लोग क्या कर देता है, गलती क्या कर दिया, कमीशन बोला ये खर्चा का नाम से सैलरी करते ये करते, लेकिन ये तो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया गया खर्चा, यानी यूज करने का पहला खर्चा, ठीक है। तो ये जो खर्चा तुम किए तो होना चाहिए था एसेट्स अकाउंट डेबिट, तुम करते कमीशन अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या तुम क्रेडिट किया, ये ক্রেডিট করেছে, তাহলে সাইড তো ঠিকই আছে, সাইড ঠিক আছে মানে অ্যারিথমেটিক ইকুয়েশনতে ট্যালেন্ট স্টাইল করে যাবে, কারণ সেম সাইড তো গেছে, অ্যাসেটস হলেও ডেবিটে যেত, কমিশন হয়েও ডেবিটে অ্যামাউন্ট গেছে, তাহলে অ্যামাউন্ট নিজের জায়গা তো ঠিক আছে, এই জন্য ট্রায়াল স্টাইল করে গেল, তাহলে ডাজ নট ইফেক্ট ট্রায়াল আবার প্রুফ হলো যে এটা ইফেক্ট করে না। কিন্তু এই রুলস ওয়াইজ ঠিক আছে, পর কথা ছিল অ্যাসেটস, এটা কারা ভুল করবে, যারা রুলসটা प्रिंसिपल्सটা না জানে, प्रिंसिपल्स नहीं जाना मतलब क्या हो रहा है कि तुमको बोल दिया गया कि पुट टू यूज, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जो तुमको कॉमन याद रहता है, जो हैंडल की इसको हम इसलिए दिए थे कि इसको हैंडल नहीं किया, वो वाला वो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉल करने का समय का तो वेजेस पेड किए, तो जनरली क्या होगा बोलो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, তোমরা দুজন লেট করেছো, তোমরাই আসো আসো, आइए आ शुभम आती जाना, सोम प्लस तुम वहाँ पर बैठे, सोम को आओ, सोम वीडियो में एट अ सिंपल लेट जो पनिशमेंट होगी कि बैठ कहीं भी देखते हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हियर आर जनरली टू बोले बोले लेट করে তোদের বলতে হবে, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, কোনো টেনশন ছাড়া
দেখে নাও। লেট ফুল ভালো স্টুডেন্ট লেট ফুলে কোনো প্রবলেম নেই, এমনি কোনো কথা নেই, সবার জন্য সেম রুল। বলো ওয়েজেস পেড ফর ইনস্টলেশন অফ মেশিনারি, তাড়াতাড়ি এদিকে দেখে বলে দাও आंसर জার্নাল এন্ট্রি বলা আছে, গুড রাইট যা আছে বলে দাও তাড়াতাড়ি। तो टेंशन है यस राइट आंसर, मशीनरी टू कैरी, वेजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुट इंस्टॉल माने हो रहा है कि उसको फिर से यूज किया नहीं है, इंस्टॉल करने का पहले पुट टू यूज के पहले जो खर्चा प्रिंसिपल पता है, पुट टू यूज करने का पहले का जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एसेट्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ एसेट्स कौन है? मशीन है ना, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस के लिए वेजेस खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो उसका नाम खर्चा और नाम बोलकर आएगा वो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन बहुतों का मन में अभी भी नहीं बताते तो तुम लोगों का दिमाग में क्या आता कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ये होता ना वेजेस टू कैश, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। पुट टू यूज पहले का करने का पहले का इंस्टॉल करने मतलब इंस्टॉल करने के बाद आदमी यूज करेगा। ठीक है, 1 लाख का मशीन खरीदे 20,000 रुपया कंप्यूटर खरीदे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डालने में 20,000 लगा, तो हम किसी को बोलेंगे कि मेरा कंप्यूटर का कितना कॉस्ट पड़ा, तो बोलेंगे 1 लाख, हम तो जाहिल हो गए 1,20,000। ठीक है, उस पे जो इंस्टॉल किया उसका भी तो कॉस्ट को हमको मेन पार्ट में लेना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेरा कंप्यूटर का कितना पड़ा होगा 1,20,000, समझ में आया? तो कॉस्ट को इंक्रीज किया 1 लाख में ऐड हुआ, तो उसी तरह मशीन को इंस्टॉल करने का समय जो वेजेस पेड किया वो मशीन का ही कॉस्ट में इंक्रीज होता है, तो मशीनरी टू कैश होना चाहिए था, लेकिन गलती क्या कर देता है प्रिंसिपल का लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल वेजेस टू कैश कर देता है, उसको रेवेन्यू ट्रीट कर देता है, वेजेस नहीं तो खर्चा मान लिया, खर्चा मतलब रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू खर्चा मान लिया तुम, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने एसेट्स ट्रीट किए और कैपिटल एक्सपेंडिचर इटसेल्फ मींस एसेट्स ट्रीट करना। ठीक है, तो वेजेस ठीक है तो कर दिया क्या तुम मशीन होना चाहिए था वेजेस कर दिया, लेकिन दोनों तो डेबिट में ही है, यानी ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, गलती हुआ लेकिन ट्रायल बैलेंस पर इंपैक्ट नहीं, क्योंकि वेजेस मशीन भी होता तो भी डेबिट में आता, वेजेस भी गलती से आदमी डेबिट में ही करता है। ठीक है, तो वेजेस भी तो खर्चा ही है, खर्चा के साथ, लेकिन वो नाम ट्रायल बैलेंस से इंपैक्ट किया नहीं किया, तो ये प्रिंसिपल्स ये जो एरर्स है ये ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट वाला था कम्पेंसेटिंग एरर्स, चार ধরনের এরর্স বলেছিলাম, প্রথমে এরর্স অফ অমিশন, নেক্সট এরর অফ কমিশন, এরর্স অফ প্রিন্সিপালস এন্ড এরর্স অফ কম্পেনসেটিং এরর্স। ঠিক আছে, তো এরর্স অফ কমিশন মধ্যে সাবডিভিশন অনেকটা চারটে করেছিলাম, ঠিক আছে সেটা। এবার কম্পেনসেটিং এরর্স মিন্স হোয়াট? Compensating errors are those errors in which effect of one error is nullified, nullified মানে শেষ হয়ে যাবে, কম্পেনসেট হয়ে যাচ্ছে, জিরো হয়ে যাচ্ছে, নাল মানে ভয়েড, নাল যেটা শেষ জিরো। ঠিক আছে, তো মানে কি কিছু নেই ওর মধ্যে খালি, ঠিক আছে, তো nullified by the effect of another errors। ঠিক আছে, তো নাল এন্ড ভয়েড আমরা কন্ট্রাক্টে তোমরা ওই যারা ল পড়েছে তারা ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করে, ঠিক আছে, তো নাল এন্ড ভয়েড। ঠিক আছে, তো তার কোনো এক্সিস্টেন্স নেই, এক্সিস্টেন্স নেই তাহলে ওটাকে নালিফাইড বলা হয়। ঠিক আছে, তাহলে ওর যে ভুল হয়েছে ওটা আর ভুল দেখা যায়নি, কেন? কার জন্য? বাই দি ইফেক্ট অফ আনাদার এরর, একটা ভুল অন্য ভুলটাকে কম্পেনসেট করে দিচ্ছে, জিরো করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেই ধরনের যদি এরর্স হয় তাকে কি বলা হয়? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एक गलती दूसरा गलती को छिपा। ठीक है, तो कैसे? जैसे संजय अकाउंट इज डेबिटेड विथ 100 इंस्टेड ऑफ 1000। सोचो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट के एक साइड होता है, डेबिट में ऑलरेडी 50,000 है, इसको छोड़कर ये वाला ट्रांजैक्शन को छोड़कर 50,000 है टैली किया हुआ। अब संजय को डेबिट होना चाहिए था कितना से? संजय को डेबिट होना चाहिए था 1000 से, कर दिया है 100, तो संजय को डेबिट किया 100 से। अजय अकाउंट विच वाज डेबिटेड 900 लेस। ठीक है, तो उसको 900 रुपये कम कर दिया। ठीक है, तो अब 900 रुपये उसको कम कर दिया, डेबिट कर दिया। अजय अकाउंट का तो 1000 के से नहीं 9000 मोर, या ऐसे होना चाहिए था 1000 कर दिया इंस्टेड ऑफ 100। ठीक है, तो ऐसा है तो इधर 1000 कर दिया। ठीक है, तो अगर सही ये रॉन्ग है दोनों।
ठीक है। तो अगर राइट हैंड से क्या होता, राइट हैंड से यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था, 50,000 होता। उसमें इधर पर अजय संजय को 1000 रुपये लिखना चाहिए था और अजय को 100 रुपये लिखना चाहिए था। तो टोटल मेरा कितना होना चाहिए था, 51,100। ये तो अभी कितना है, 51,100। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट 51,100 होना चाहिए था, 51,100 ही है। ठीक है, फिर से सुन लो, संजय अकाउंट इज डेबिटेड विद 100 इंस्टेड ऑफ 1000। उन्हें 1000 के बदले में 100 लिख दिया, तो लिखा है गलत क्या, 100 होना चाहिए था कितना, 1000। ये राइट और ये रॉन्ग। ठीक है, अजय का अकाउंट डेबिट हुआ 1000 इंस्टेड ऑफ 100। अच्छा, एक और एक अकाउंट है जिसको कितना से होना चाहिए था, 100 रुपए से होना चाहिए था, कर दिया कितना, 1000 रुपया। तो गलती से 1000 लिख दिया, होना चाहिए था 100। अगर ये सब कुछ सही लिखा तो टोटल कितना होता, 51,100। अगर गलत लिखे हो तब टोटल कितना दिख रहा है, 51,100। यानी एक एरर दूसरा एरर को कॉम्पेंसेट कर दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहे हैं 50,000 को, परचेज डे बुक अंडर कास्ट बाय 2000। तो परचेज सोचो, परचेज था पहले 20,000 का, उसमें अंडर कास्ट मतलब होता है कम लिख देना, अंडर कास्ट मतलब होता है कम, वैल्यू कम करके लिख देना। ठीक है, तो ओवर कास्ट मतलब होता है बढ़ा देना और अंडर कास्ट मतलब होता है कमा देना। तो 20,000 होना चाहिए था, 2000 से अंडर कास्ट, तो परचेज डेबिट होता है, परचेज की হয় डेबिट হয়, परचेज के 20,000 দিয়ে যদি আমি ভাবি গোল পারচেজ আমি এসে করছি 20,000 ছিল 2,000 লেস করে দিয়েছে, আন্ডার কাস্ট মানে হচ্ছে লেস করে লেখা। ঠিক আছে, তো তাহলে এটা কি হয়ে গেল, 20,000 ছিল 18,000 লিখে দিল। ঠিক আছে, এবার সেলস রিটার্ন, সেলস ক্রেডিট হয় আর সেলস রিটার্ন কি হয়, डेबिट হয়। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। उसको अगर ओवर कास्ट करते 20,000 से ओवर कास्ट करते, सेल्स रिटर्न सब कुछ था 4,000 कर दिया, ये सही था, तो कर दिया। यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, 4,000 की जगह उसको क्या कर दिया है, 6,000 कर दिया। ठीक है, ये दोनों रॉन्ग किया। अगर ये रॉन्ग किया है तो 18 से 24 दोनों का मिलाकर टोटल कितना हो रहा है, 24,000। ठीक है, अगर इसको राइट लिखता तो कितना होता, परचेज को 20 लिखते और सेल्स रिटर्न को 4,000 लिखते, तो टोटल कितना होता, तो भी 24,000 होगा। यानी कि कॉम्पेंसेट कर दिया, एक एरर दूसरा एरर से कॉम्पेंसेट हो गया। समझ में आया, एक एरर दूसरा एरर से क्या हो गया, कॉम्पेंसेट हो गया। तो सेल्स रिटर्न से सिमिलर नेचर का चीज है, वहां पर जाके जहां पर जितना कम था उतना से एक दूसरे ने ज्यादा गलती से ज्यादा लिख दिया, सेम अमाउंट से गलती से ज्यादा लिख दिया, तो जो गैप था वो फुलफिल हो गया, तो इसलिए कॉम्पेंसेट होके नलिफाइड हो गया, गलती पहचान में नहीं आया। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। क्लियर है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में आएंगे, तो लोग से पूछेंगे कि ये किस टाइप का एरर्स है। ठीक है, अब सब चारों का चारों ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग काटे हो गए। ठीक है, तो नाम बोलो, इतना नाम साथे ना। तो हम एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन में, लेकिन सिर्फ कमीशन में तो है, कमीशन के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी बताया है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, कैरिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो कास्टिंग, ये सब तुम लोग को समझना बोलना होगा। ठीक है, तो कि किस कैटेगरी में, कमीशन के अंदर किस कैटेगरी में। क्लियर है। तो पहला हो रहा है अक्रेडिट सेल्स 2700 to Aman was recorded as 7,200। 2700 means 2,700 को लिख दिया हम लोग 7,200। तो what type of error is this? क्या होगा बोलो, ठीक बोलो, जोड़े बोलो, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में जब गलती लिखता है तो उसको एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग अंडर, ये कमीशन का अंडर में एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर्स ऑफ कमीशन अंडर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ऐसा गलती है तो हो गई होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग का समय ना, डेबिट जर्नल जब एंट्री करे तो उसी समय क्या कर दिया, 2700 को 7,200 लिख दिया, ये तो रिकॉर्डिंग हो गया, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन एरर्स ऑफ जो रिकॉर्डिंग होता है वो किसके अंडर में होता है, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग कार अंडर है, अंडर कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन अंडर है।
তাহলে শুধু কমিশন প্রিন্সিপাল এটা বলে তাহলে কমিশন দিবে, কিন্তু কমিশন না দিয়ে এরারস অফ রেকর্ডিং ক্যারি ফরওয়ার্ড পোস্টিং তাকু এটা এরারস অফ রেকর্ডিং হবে, রেকর্ডিং এরারস অফ কমিশন বল समझ में आया? দেখলে বললে বুঝতে পারলে বলে দাও, ঠিক আছে, ডাউটে থাকবে না আমি বললেই ভুল হবে। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड वाज पास थ्रू सेल्स बुक, क्या होगा रानी बोलो, जोर से बोलो, ঠিক আছে, বললে কি আছে, বললে সবাই রাইট বলবে এটা তো না, ভুল বলে দিতে পারে, ভুল বলেছে। और कोई ओल्ड फर्नीचर सोल्ड पास थ्रू सेल्स डेमो, वेरी गुड, एकदम गलत। और बोलो, अभी बताए थे यहाँ पर भी प्रिंसिपल का गलती हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंस फर्नीचर एसेट्स होता है, एसेट्स को बेचिए, सेल्स और परचेज यूज होता है जब गुड्स सेल करने से या गुड्स परचेज करने से, परचेज किए तो गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट होता है, सेल करने से सेल्स डे बुक में अगर देखेंगे तो सेल्स डे बुक में, तो परचेज डे सेल्स डे बुक क्या होता है, गुड्स के लिए होता है ना, फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था, यानी कैपिटल एक्सपेंस कैपिटल इनकम था उसको रेवेन्यू इनकम मान लिया, अगर सेल्स में कर दे तो सेल्स तो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू ट्रीट करते तो कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर देना तो क्या होता है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तुम देखे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट হওয়ার কথা ছিল, টাকা আসলো ব্যাংক বা ক্যাশ দিয়ে আসলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক দিয়ে আসলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, টু ফার্নিচার কারণ আমার কাছ থেকে যাচ্ছে ফার্নিচার, ঠিক আছে, অ্যাসেটস কমলো ফার্নিচার কমে গেল, আর টাকা আসলো ক্যাশ দিয়ে আসলে ব্যাংক দিয়ে আসলে যেটা হবে ডেবিট, কিন্তু পাস থ্রু সেলস বুক তার মানে না ডেট পে, এইটা যদি ধারে তুমি এখন ধারে বিক্রি করে দিয়েছো যা হচ্ছে সেটা আলাদা, তুমি যার নাম আছে তার নাম লিখে দিবে, ঠিক আছে, তো পারচেজারের নাম লিখে দিবে, কিন্তু তুমি সেলস ডে বুকে তুমি ডেটার টু সেলস, সেলস ডে বুক মানে কি সেলস মেনেছো তার ডেটার্স টু সেলস লিখে দিয়েছো, ঠিক আছে। ভাবো এটা ব্যাংকে আমি এটা মানে ডিউয়েল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তো যাকে আমি সেল করেছি যে আমার পারচেজার আছে তার অ্যাকাউন্ট ডেবিট হওয়ার কথা ছিল টু ফার্নিচার হয়েছিল, ওই ডেটারকে ভাবো ডেটারকে লিখেছে ছাড়ো টু সেলস করে দিয়েছে, কারণ টু ফার্নিচার হয়েছে, টু সেলস হওয়ার কথা ছিল ফার্নিচার ক্রেডিট করে দিয়েছে সেলস, আর সেলস ডেবুকে জার্নাল সেলস ডেবুকে এন্ট্রি করা মানে এই ধরনের তো এন্ট্রি হবে, জার্নাল এন্ট্রি করলে এইভাবে হবে, সেলস ডেবুকে রেকর্ড করা মানে ক্রেডিট সেল ভেবেছে, গুডস এর সেল ভেবেছে, যখন অ্যাসেটস বিক্রি হয়েছে, অ্যাসেটস বিক্রি হলে ক্যাপিটাল ইনকাম হওয়ার কথা ছিল, রেভিনিউ ইনকাম ট্রিট করে দিয়েছে, বুঝতে পারলে, তাহলে এটা প্রিন্সিপাল है वो अभी बताया था प्रिंसिपल में कि कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर देने से ये होगा, तो ये एसेट्स सोल्ड किया है, सेल्स डे बुक परचेज डे बुक में गुड्स परचेज गुड्स सोल्ड का एंट्री होता है, सेल्स डे परचेज डे बुक रिकॉर्ड्स ऑल द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स डे बुक रिकॉर्ड्स ऑल द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट्स, फिर परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक पर जो क्रेडिट में परचेज किया था वो अगर रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होता है, सेल्स रिटर्न बुक में जो गुड्स सोल्ड किया था क्रेडिट में उसको अगर रिटर्न करें तो सेल्स रिटर्न बुक में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक में ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, लास्ट में अगर इस सब में नहीं एंट्री जगह पाता है तो कहां पर जाता है, जर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बेसिक था, तो ये जो हो रहा है ये जर्नल प्रॉपर्टी का पट्टा है, तो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन वो चला है कैपिटल इनकम है, वो लिख दिया सेल्स डे, तो बुक का गलती, प्रिंसिपल का रूल्स का गलती, ठीक है। तो नेक्स्ट wages paid for construction of office debited to wages account, क्या होगा बोलो, जिसको बोलना है तो कॉन्फिडेंट होकर बोल दो, ठीक है, तो इस तरह से नहीं कि मन में रखोगी कि बाद में लगे मेरा है, बोलो कोई एक बार गलती के दोबारा सही करके बोल दो, बोलो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड, ठीक है, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अब क्या मैं दिखा जब तक वो बोले सही बोल रहे हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल ये कंस्ट्रक्शन होगा तब ना ऑफिस बिल्डिंग यूज करोगे, तो वेजेस पे किया है, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया, जबकि ये रॉन्ग कर दिया, होना क्या चाहिए था, कंस्ट्रक्शन मैंने हो रहा है उसके लिए वेजेस दे दो, तो वो मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एसेट्स को डेबिट करना है, तो एसेट्स का नाम क्या है, ऑफिस या ऑफिस बिल्डिंग का, तो कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग ही होगा, तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना क्या चाहिए था, ऑफिस बिल्डिंग माने कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स अकाउंट डेबिट होना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो लेकिन उन लोग किसको डेबिट कर दिया गलती से,
वेजेस को। तो ये गलती किस तरह गलती है? प्रिंसिपल गलती है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहले तो पढ़ाई करते तो तुम लोग को माने डेथ पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट जनरल एंट्री आता उसको ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिकल करा के खत्म। एमसीक्यू है या क्वेश्चन करने का भी पैटर्न छोटा छोटा हो गया, जैसे हो गया तो तुमको डेथ पूछेगा। ठीक है, तो तुम लोग डेथ तुम लोग का भी होगा 5 तो ये क्वेश्चन में आएगा, अगर विकल्प में आइडेंटिफाई करने दे देगा वो एक तरीका, या तो जनरल एंट्री देगा। ठीक है, भले जनरल एंट्री दे, तुमको ये चीज सीखना चाहिए उसके भी उसमें करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, और सीएसए में वाला को तो ऐसे ही आता है एमसीक्यू में। 8000 paid to Vijay, an employee debited to Vijay कौन है? एम्प्लॉय है, debited to his personal account। ये तुम बोल पाओगे, अब कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर बोलो। चलो कंफ्यूजन भी है थोड़ा, क्योंकि ये कंपनसेटिंग एरर भी हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है ना। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकता है, और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो किसी तरह से नहीं हो रहा। इसको पर्सनल अकाउंट में कर दिया ना, कौन सा प्रिंसिपल? तो कैपिटल रेवेन्यू वाला आता है, कौन सा कैपिटल रेवेन्यू का कहानी है यहाँ पे? सोचो भाई, नाम दूसरा हो जाने से एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल मैंने जो प्रिंसिपल के चलते गलती किया, नियम में कुछ गलती तो है। सोच के यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक से सोचो, कॉन्फिडेंट पॉज कर दो, तो देखो ये जो तुम बोली ना एकदम बकवास में कि ये वाला तुम्हारा प्रिंसिपल गलती है, नहीं, ये पोस्टिंग का गलती है। जब एक अकाउंट को दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ये प्रिंसिपल के चलते नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला कहानी नहीं है ना, कैपिटल इनकम रेवेन्यू इनकम का कहानी नहीं है ना। यहाँ पर था एम्प्लॉय को सैलरी, मेरा सैलरी अकाउंट में होना चाहिए, एम्प्लॉय को सबके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में, तो सैलरी अकाउंट बोल के खर्चा का नाम होना चाहिए। उन लोग क्या करते हैं, विजय का नाम कर दिया, तो विजय तो कोई एसेट बोल के रखते नहीं है, विजय का को पेमेंट करते लोग क्या करते हैं, विजय अकाउंट डेबिट करता है, उसका से विजय अकाउंट डेबिट कर दिया, पोस्ट कर दिया विजय के घर में, तो ठीक है, तो डेबिट कर दिया। तो 8000 पेड टू विजय एंड एम्प्लॉय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये गलती किस तरह का है? पोस्टिंग का गलती, एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग किसमें होता है? कमीशन के अंदर। किसमें? एरर ऑफ कमीशन अंडर है, एरर ऑफ पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग, कैरी फॉरवर्ड है भूल, पोस्टिंग है भूल, और कास्टिंग है भूल। এই চারটি ভুল আন্ডার এরর অফ কমিশনের মধ্যে হয়। শুধু এরর অফ কমিশন জানতে না, ওর আন্ডারে যত ধরনের ভুল আছে সব কমিশনের আন্ডারে আছে, এটা মনে রাখতে হবে। লাস্ট, an amount of 2000 previously written off as bad debt now recovered but paid to debtor account। देखो बैड डेट होने से जनरल एंट्री क्या था? बैड डेट। सोचो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एसआर जो हमको बैड डेट किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम सोचा कि ये मेरा डेटर पैसा नहीं देगा, बैड डेट मेरे को कर दिया, तो बैड डेट मेरा हो गया, जो देने वाला था वो नहीं देगा, उसको लिस्ट से, डेटा का लिस्ट से हटा दे। तो डेटा इंक्रीज करने से डेबिट होता है, डिक्रीज करने पे क्रेडिट होता है। कुछ जब नेक्स्ट ईयर का जो हुआ तब वो अचानक पैसा दे दिया, तो इसको बैड डेट रिकवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पैसा आया मेरा बैंक में, सपोज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। लेकिन उसका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम बहुत ट्रेडिशनल नाम है। क्या नाम है? कामिनी। कामिनी ने जो बोला कि गिवर है सर, देने वाला तो एसआर है, तो एसआर ही लिखेंगे हम लोग स्कूल में। तुम्हारा स्कूल तो यही बोला था कि गिवर और रिसीवर। तुमको इतना बार कि हम बोले मॉडर्न रूल में जाओ, तुम नहीं जा रही हो। ठीक है, गोल्डन रूल में भी तुम ठीक से समझ के नहीं कर रही हो। वो गिवर और रिसीवर, गिवर होने से होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो गिवर जो था ऑलरेडी डेटा जब सेल किए थे, डेबिट किए थे, बैड डेट किए थे, डेटा लिस्ट से गायब है। तो अब जब रिकवरी हुआ तो उसका एंट्री होता बैंक टू बैड डेट रिकवरी। जबकि उन लोग डेबिट कर दिया, किसको कर दिया? डेटर को, यानी ऐसा कर दिया। ये किस तरह गलती है? नहीं, पोस्टिंग क्या ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती हुआ। एक अकाउंट जो होना चाहिए था बैड डेट रिकवरी का, कर दिया दूसरा अकाउंट में, नाम है एसआर का। ठीक है, तो एक अकाउंट जगह दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बोले सर वहां भी तो करेंगे, वो प्रिंसिपल है तेरा कैपिटल और रेवेन्यू वाला, तुम उसको छोड़ के दूसरा में लगाना चाह रहे दिमाग, तभी हो जाएगा गलती। क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग।